A very good morning, students. Today we are going to start last topic of Unit 4 planning, that is types of plans. So I prepared mind map of this topic, types of plans. These have three types: standing plan, single use plan, neither standing nor single use plans. What is standing plans? As their name indicates that these plans are formulated once, एक बार बनाए जाते हैं, and they are repeatedly used. इनको बार बार यूज करते हैं. These plans continuously guide the manager. That's why it's said that a standing plan, right? For example, objectives, strategies, policies, procedures, methods, rules, right? Second is single use plan. These plans are connected with some special problems. These plans ends the moment the problems are solved. After having been used once, एक बार इनको यूज करने के बाद there is no importance of these plans in future. So whenever they needed, they are recreated. जब भी इनकी नीड होगी तो हम दोबारा से इनको बनाएंगे. So okay, budget and programs are single use plan. ठीक है. तो now we will start the first type, that is a standing plan. First one is the policy. What is the policy? General statement which are decided for the guidance of the employee while taking decision. Policies are those general statements which are decided for the guidance of the employees while taking decision. जब भी हमें मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए गाइडलाइंस की तरह रोल प्ले करती हैं पॉलिसीज जो हैं. फॉर एग्जांपल पर्सनल पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, प्राइस डिटरमिनिंग पॉलिसी. Under sales policy, it can be decided that the goods will be sold only on cash payment, cash basis. So this is the policy. Second point is the procedure plan that determines the sequence of activity to be conducted to perform a work. ठीक है, ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है डिटरमिन करने का, एक सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस. फॉर एग्जांपल अगर रिकवरी करनी है ऑफ मनी की फ्रॉम द डेटर्स, इट कैन बी मेड. एक ऑर्डर होगा इसके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेटर टू दैट पर्सन, देन यू विल कॉन्टैक्ट ऑन टेलीफोन, देन यू विल मीट पर्सनली. अगर तब भी वो नहीं पे कर रहा, देन यू विल टेक लीगल एक्शन, राइट. दिस इज द प्रोसेस और प्रोसीजर. नेक्स्ट पॉइंट इज द मेथड. Method is that plan which determines how different activities of the procedure are completed. It is more detailed than procedure. ये procedure का थोड़ा सा detailed part है. ये वो बताता है कि method is a plan which determines how different activity of the procedure are completed. It means ये there are many methods to do a particular work. एक काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं. So हमें कौन सा मेथड उसमें से लेना है. मेथड हैज़ टू बी सिलेक्टेड विच मेक्स फटीग मिनिमम, जिससे थकावट कम हो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और रिड्यूस कॉस्ट को कम किया जा सके. तो इस तरह के मेथड हमें इसमें चूज करने हैं, राइट. नेक्स्ट इज द रूल. इट रेफर्स टू दैट प्लान. इट टेल्स यू व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री इज एप्लीकेबल टू एवरीवन और इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड. अगर सपोज कर लो कि कोई नॉन ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो इट कैन ऑल्सो बी मेड प्रोविजन फॉर पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल कैन ऑल्सो बी मेड, राइट. नेक्स्ट, दीज आर द स्टैंडिंग प्लान्स. नाउ द सिंगल यूज प्लान. दीज आर द प्रोग्राम covers a relatively large organizational activity and specifies main steps, order, timing, department is responsible. It means a program means a single use comprehensive plan laying down a what, how, who and when of accomplishing a specific job. The program can be different types. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम. ठीक है. इन केस ऑफ सेल प्रमोशन, फॉर एग्जाम्पल what, who, how, when of everything right from the purchase of raw material to the manufacturing of the product is defined. इसमें हम उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम इसमें वर्क करेंगे. सेकेंड इज द बजट. इट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन. क्वांटिटेटिव, राइट. फॉर एग्जाम्पल द सेल्स डिपार्टमेंट बजट गिव्स एस्टिमेटेड फिगर. वो अपना फिगर बताएंगे अबाउट द टाइप ऑफ मटीरियल दैट विल बी परचेज, इट्स क्वांटिटी क्या है, द टाइम ऑफ परचेज कब चाहिए उनको, एंड अमाउंट ऑफ द स्पेंड, उसके ऊपर कितना खर्च आएगा.
सिमिलरली बजट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड, ऐसे ही सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स का बजट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नो नाइदर स्टैंडिंग नो सिंगल यूज प्लान, फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव, इट रेफर्स टू दैट एंड पॉइंट फॉर अटेनिंग ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। ऑब्जेक्टिव जो है एंड पॉइंट होते हैं जिनको आपको अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव नीड्स टू एक्सप्रेशन इन स्पेसिफिक टर्म्स एंड क्वांटिफाइड, इसको क्वांटिटी में मतलब क्वांटिफाइज आपको इसको अचीव करना है विद इन अ गिवन पीरियड, एक पीरियड भी आपको इसमें फिक्स करना है, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे टू क्रॉस द 20,000 करोड़ मार्क इन टर्न ओवर ऑफ सॉप, आप सॉप का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप अपने सेल्स को 20,000 करोड़ से बढ़ाना चाहते हैं, तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म या कंपनी, राइट। और यहाँ टू रिड्यूस क्वालिटी रिजेक्ट्स टू 3% एटसेट्रा। सेकेंड इज द स्ट्रेटेजी, strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's objective like business environment into consideration। आपको पता है कि आपको जिस environment में आपको work करना है, business करना है, वो आपका external environment है, वो आपका dynamic है, उसमें डेली चेंजेस होते रहते हैं, और उसे मीट करने के लिए और लॉन्ग टाइम तक अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है इसमें यूज़ करनी है। तो वो स्ट्रैटेजीज हमें लॉन्ग टाइम के लिए इसमें अडॉप्ट करनी है। तो whether major strategic decisions will include in the following, whether the organization will continue to be the same line of business, अगर वो उसमें रहना चाहते हैं, combine new line of activity with the existing business, or to seek a acquire a top position in the same line of the business, right? So these were the types of plan. So now chapter is completed. So please prepare proper notes. Thank you so much and have a nice day.